Today we discuss more example based on complex number on the exercise first. Example number 6. Example number 6. We discuss if a plus iota b, c plus iota d is equal to a plus iota b, then show that a square plus b square c square plus d square is equal to a square plus b square. This is given. Then solution of this part is, first of all we write here given is a plus iota b, c plus iota d is equal to a plus iota b. This is given, and we want to prove a square plus b square into c square plus d square is equal to capital A square plus capital B square. Taking modulus to बोथ साइड्स, दोनों तरफ मॉडुलस अप्लाई कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया a प्लस आइटा बी इंटू सी प्लस आइटा डी, मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी मॉडुलस ऑफ दिस. बट we know that z1 into z2 modulus is equal to modulus of z1 modulus of z2. Then this implies a plus iota b modulus c plus iota d is equal to a plus iota b, and this modulus is real part का square प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट. जब आप मॉडुलस की कंडीशन को फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन वी राइट हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और यही प्रूव करना है आपने. गिवन था आपको कि दिस रिजल्ट यहाँ मैं लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा. ये एग्जांपल नंबर 6 का पार्ट है आपके पास. देन एग्जांपल नंबर 7 प्रॉपर्टीज फॉलो करवा रखी है उसने. Find the modulus of 5 minus 12 iota upon minus 3 plus 4 iota. Find the modulus. मॉडुलस चाहिए आपको. दो पार्ट है आपके पास, दो तरीके हैं. या तो मैं इस एक्सप्रेशन को z1 अपॉन z2 को a प्लस आइटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करूं. व्हाट इज गिवन इज 5 माइनस 12 आइटा अपॉन माइनस 3 प्लस 4 आइटा. दिस इज गिवन. देन z1 अपॉन z2, देन मॉडुलस, apply modulus to both sides. Apply modulus on the given expression. We write here 5 minus 12 iota minus 3 plus 4 iota modulus of this is equal to 5 minus 12 iota modulus minus 3 plus 4 iota modulus, because Z1 upon Z2 modulus is equal to modulus of Z1 modulus of Z2.
and this is equal to 25 plus 144 square root upon 9 plus 16 square root, and this is equal to 169 upon 25 square root and this is equal to 13 upon 5. एक तरीका तो ये है कि हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी में चले जाएं, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। एक तरीका तो ये हमारे पास, या फिर दूसरा तरीका हमारे पास इसी के सेकंड पार्ट पे, ये फर्स्ट पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट है मेरे पास, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 2 minus 3 iota, 2 minus 3 iota square of this upon 4 plus 3 iota, 4 plus 3 iota। यहां से Z1 2 minus 3 iota का होल स्क्वायर है। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज गिवन, 2 minus 3 iota square of this upon 4 plus 3 iota. This is given. Then we write here 2 minus 3 iota square of this upon 4 plus 3 iota modulus. लिख सकते हैं ऐसे, and we write here 2 minus 3 iota square of this modulus upon 4 plus 3 iota modulus, and we write here this part, real part का square, real part का square plus imaginary part का square, square the root square of this upon real part का square, imaginary part का square, square the root। यहाँ से हो गया 4 plus 9 square the root square of this upon 16 plus 9 square the root, and this is equal to root 13 square of this upon 25 square of this, and this is equal to 13 upon 5। ये मेरे पास मॉडुलस आ जाएगा। होल स्क्वायर की टर्म को हम एज इट इज रखेंगे, 2 minus 3 आइटा का होल स्क्वायर है, 2 minus 3 आइटा सिर्फ कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन का मॉडुलस फॉलो करना है। जेड स्क्वायर का मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ जेड एक ही बात है आपके पास, उस कंडीशन से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट यहाँ से फॉलो हो जाएगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8। क्या एग्जांपल नंबर 8 हमारे पास, सोल्व द इक्वेशन, सोल्व द इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 1 plus iota, 1 plus iota modulus of this whole raised to power x is equal to 2। सेकेंड पार्ट है इसका modulus of z is equal to z plus 1 plus 2 iota, and third part is z square plus modulus of z का square is equal to this। solve the equation। तो मेरे पास रिजल्ट होगा यहाँ से सोल्व द इक्वेशन में। सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट पे, व्हाट इज गिवन, फर्स्ट पार्ट में गिवन है मेरे को 1 plus iota modulus of this raised to power x is equal to 2, this is given। then 1 plus iota, 1 plus iota modulus of this is equal to real part का square plus imaginary part का square, square the root, and this is equal to root 2। तो यहाँ से सॉल्यूशन आ गया मेरे पास रूट 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2, और इसको लिख दिया 2 की पावर 1/2 होल रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2, और इसको लिख दिया 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर x/2 इक्वल टू दिस, इसको लिया 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, बेसिस आर सेम, एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, x/2 इज इक्वल टू 1,
एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। ये सॉल्यूशन हो गया सोल्व द इक्वेशन और x इज इक्वल टू 2, ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड केस को मैं सॉल्व करता हूँ, मेरे को क्या गिवन है उसी के अकॉर्डिंग मैं फॉलो करूंगा वहां से रिजल्ट को। वी आर गिवन z प्लस मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 1 प्लस 2 आइटा। लेट मी सपोज दैट z इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट सॉल्यूशन है। फर्स्ट वी राइट व्हाट इज गिवन, गिवन पार्ट है मेरे पास मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 1 प्लस 2 ऑफ आइटा। लेट z is equal to x plus iota y. X and y belongs to real value. Therefore, modulus of z is equal to modulus of x plus iota y, and this is equal to x square plus y square square the root. ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई मेरे पास। Therefore, मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या बना, मॉडुलस z की वैल्यू है मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू x प्लस आइटा y प्लस 1 प्लस 2 आइटा। ये राइट हैंड साइड होगी मेरे पास। तो रिजल्ट क्या बना मेरे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू रियल पार्ट राइट हैंड साइड में कलेक्ट कर दिया, इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट कर दिया y प्लस 2, रियल पार्ट x और 1 राइट हैंड साइड में, इमेजिनरी पार्ट आइटा y और 2 आइटा, उन दोनों को हमने कलेक्ट कर दिया यहाँ से। तो मेरे पास रियल पार्ट क्या बन रहा है यहाँ से, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस आइटा y। एग्जैक्ट मेरे पास रिजल्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इक्वेट किया, एंड इमेजिनरी पार्ट इधर है नहीं, इज इक्वल टू वाई प्लस 2। मेरे पास ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर द रूट प्लस 0 आइटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस आइटा ऑफ वाई प्लस 2। स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखी है। देन यहां से मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 में फर्स्ट इक्वेशन पुट करूंगा, पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरे पास रिजल्ट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज दिस, राइट और नॉट, एक्स प्लस 1, एंड वी राइट हियर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, and we write here x square plus 4 is equal to x square plus 2x plus 1। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से। देन 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया x, तो मेरे पास बचा 2x प्लस 1, और यहाँ से हो गया 2x इज इक्वल टू 3, और x हो गया मेरे पास 3/2। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/2 और y की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। देयरफॉर सॉल्यूशन आ गया मेरे पास। देयरफॉर लेट किया हमने z को x प्लस आइटा y, ये हम लेट करके चले हैं, तो x की वैल्यू पुट करें आप, तो आपके पास हो गया 3/2 प्लस आइटा y इज -2, तो मेरे पास रिजल्ट हो गया 3/2 माइनस ऑफ 2 आइटा। ये मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए मेरे को सोल्व द इक्वेशन, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी तो एक ही सॉल्यूशन आएगा 3/2 माइनस 2 आइटा। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। सिमिलरली सॉल्यूशन फॉर थर्ड, व्हाट इज गिवन, द गिवन पार्ट इज z स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन लेट मी अज्यूम दैट let z is equal to x plus आइटा y।
एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए मेरे को। देन जेड स्क्वायर वैल्यू पुट की हमने, एक्स प्लस आइटा वाई स्क्वायर ऑफ दिस प्लस एक्स प्लस आइटा वाई स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। जेड स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन फॉलो किया तो मेरे पास आ गया यहां से एक्स स्क्वायर आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आया, बट आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास रिजल्ट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2 आइटा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस पार्ट कैंसिल। मेरे पास रिजल्ट रह गया 2x स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस आइटा एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एक्स यहाँ से कॉमन लिया, एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास या तो आ गया आइदर x इज इक्वल टू 0 और x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू 0। अगर मैं x को 0 कहता हूं, अगर x 0 है तो मेरे पास z भी 0 हो गया। अगर x में 0 रखता हूं तो y भी 0 है। इसका मतलब हो गया z 0 है, बट z इज नॉट इक्वल टू 0। z 0 हो नहीं सकता, देयरफॉर सॉल्यूशन होगा मेरे पास, देन दिस इंप्लाइज x is equal to 0. Their solution is x plus आइटा y। x हो गया 0, आइटा y, दिस इज द सॉल्यूशन। फिर y कोई भी रियल नंबर होगा, देयरफॉर द इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, infinitely many solution, many purely imaginary solution, many purely imaginary solutions. That is, all purely imaginary numbers are the solution. All imaginary numbers, all imaginary numbers are the solutions. आर द सॉल्यूशंस। y 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं x को 0 रखता हूं तो आइटा y 0, y भी 0 हो गया, और y 0 हो गया इसका मतलब z 0 हो गया। लेकिन z 0 है नहीं आपके पास, हो कि आप लेट करके ले z इक्वल टू x प्लस आइटा y है, तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर z 0 नहीं है तो आपके पास सॉल्यूशन नहीं आएगा वहाँ से। तो x 0 हो गया, x 0 होगा तो मेरे पास प्योरली इमेजिनरी सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनेटली मैनी प्योरली इमेजिनरी सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्व द इक्वेशन का केस था, इसको मैंने सॉल्व कर दिया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। देन वी डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 में क्या लिखा उसने, एग्जांपल नंबर 9 फॉर द सॉल्यूशन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड multiplicative inverse, find the multiplicative inverse, और इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 7 आइटा, 3 प्लस रूट ऑफ 7 आइटा। इस एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए मेरे को। इनवर्स का मतलब है इसका रेसिप्रोकल चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बनेगा आपके पास, सॉल्यूशन है, व्हाट इज गिवन,
इसको लेट कर लें जेड है इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 7 आइटा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जेड की पावर -1 या 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस रूट ऑफ 7 आइटा। जेड का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा जेड की पावर -1, दैट इज 1 बाई जेड। दिस इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। देन डिनोमिनेटर फ्री फ्रॉम आइटा होगा तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। जब भी कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन होगी डिनोमिनेटर इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम आइटा, ऑलवेज फ्री फ्रॉम आइटा। देन वी राइट हियर 1 अपॉन 3 प्लस रूट 7 आइटा, 3 माइनस रूट 7 आइटा, 3 माइनस रूट 7 आइटा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो मेरे पास आ गया 3 माइनस रूट ऑफ 7 आइटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से हो गया हमारे पास जेड की पावर -1 बाई जेड इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 7 आइटा अपॉन 9 माइनस 7 आइटा स्क्वायर, बट आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास हो गया 3 माइनस रूट 7 आइटा अपॉन 9 प्लस 7, एंड दिस इज इक्वल टू 3 माइनस रूट ऑफ 7 आइटा अपॉन 16, एंड वी राइट हियर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, देयरफॉर जेड की पावर -1 और 1 बाई जेड, जेड का रेसिप्रोकल लिया हमने, वो हो गया 3 अपॉन 16 माइनस रूट 7 अपॉन 16 आइटा। दिस इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। वो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, वो रिजल्ट होगा। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन होगी उसको आप फ्री फ्रॉम कॉम्प्लेक्स करेंगे। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 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 फ्री फ्रॉम कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास express the following complex number, express the following complex number in the form of example number 10, express this z is equal to 3 plus -1 square the root upon 2 minus -1 square the root in the standard form, in the form a plus iota b. Find and also find conjugate and modulus. Also find conjugate and modulus of the given complex number. पहले तो इसको एक्सप्रेस करें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, और स्टैंडर्ड फॉर्म जब आ जाएगी तभी आप कॉन्जुगेट फॉलो कर सकते हो, और स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी तभी आप उसका मॉडल्स फॉलो कर सकते हो। इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे हम यहाँ से सॉल्यूशन, व्हाट इज गिवन, पहले आप लिख लें व्हाट इज गिवन, 3 प्लस -1 स्क्वायर रूट 2 माइनस -1 स्क्वायर रूट, बट -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आइटा, therefore 3 plus iota upon 2 minus iota, -1 square root is equal to iota. This is the definition of a complex number. Then denominator is free from iota, rationalize the denominator, 2 plus iota or 2 plus iota, rationalize the denominator, denominator को rationalize करें, free from iota करें, तो मेरे पास आ गया 3 प्लस आइटा इंटू 2 प्लस आइटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 6 प्लस 3 आइटा प्लस 2 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1, बिकॉज आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जहाँ भी आइटा स्क्वायर होगा -1 से रिप्लेस करेंगे, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 6 प्लस 3 आइटा 5 आइटा -1 अपॉन 5,
कलेक्ट किया रियल पार्ट 5 प्लस 5 आइटा अपॉन 5 और 5 कॉमन ले लिया, 1 प्लस आइटा अपॉन 5 ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास z आ गया इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस 1 आइटा. दिस इज इक्वल टू a प्लस आइटा b. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. देन conjugate z bar is equal to 1 plus iota conjugate of this is equal to 1 minus iota. That is change the sign of imaginary part only to find the conjugate. And second is modulus z modulus real part का square plus imaginary part का square and square the root and this is equal to root 2. ये आपके पास कॉन्जुगेट हो जाएगा. जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर प्रॉपर्टी का यूज ना करें और अगर इस तरह से सोल्व करें तो पहले उस एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा a प्लस आइटा b की फॉर्म में, और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट मॉडुलस स्क्वायर रूट जो भी कंडीशन अप्लाई करेगा वो हम सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. ये सॉल्यूशन आपके पास. देन नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11. Example number 11. Then if x plus iota y is equal to 1 plus iota upon 1 minus iota square the root, then prove that x square plus y square is equal to 1. X square plus y square is equal to 1. Solution आपके पास. First we write what is given. X plus iota y is equal to 1 plus iota 1 minus iota square the root, और वी राइट इट एज स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया मैंने. इसको लिख दिया 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा. ऐसा लिख सकते हैं हम. देन टेकिंग मॉडुलस टू बोथ साइड्स, देन टेकिंग मॉडुलस टू बोथ साइड्स. इधर तो हो गया x प्लस आइटा y, इधर हो गया 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा. z1 अपॉन z2 मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 मॉडुलस ऑफ z2. तो यहाँ से हो गया x प्लस आइटा y, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, और ये हो गया रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 स्क्वायर द रूट 1 प्लस 1 स्क्वायर द रूट, और यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 2, और यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये प्रूव करना था. प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अगर इस तरह से सॉल्यूशन मांगेगा तो आप डायरेक्ट मॉडुलस फॉलो करें और मॉडुलस फॉलो करके प्रॉपर्टी लगा दें, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा. देन नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 12. देन वी डिस्कस एग्जांपल नंबर 12. एग्जांपल नंबर 12 में क्या कहता है वो, इफ z is equal to x plus iota y, this is given, and we given z minus 2 z minus 3 modulus is equal to 2. This is given. Then show that 3 of x square plus y square minus 20x
plus 32 is equal to 0. This is given. If z is equal to x plus iota y, then z minus 2 upon z minus 3 modulus is equal to 2. Then show that this is. Then solution पे हम follow करें. What is given? पहले लिख ले आप. What is given? Given है z is equal to x plus iota y and z minus 2 upon z minus 3 modulus is equal to. This is given. इसको हमने लिख दिया. This implies z minus 2 is equal to 2 of z minus 3. Right or not? Because z1 upon z2 modulus is equal to modulus of z1 modulus of z2. ऐसा हम लिख सकते हैं. उस रिजल्ट को मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे. तो मेरे पास रिजल्ट आया modulus of this रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर x प्लस आइटा y माइनस 2 modulus of this is equal to 2 x प्लस आइटा y. z की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे -3. लेफ्ट और राइट में दोनों में z की वैल्यू पुट कर दी x प्लस आइटा y. दिस इज गिवन. रियल पार्ट कलेक्ट किया x माइनस 2 प्लस आइटा y इज इक्वल टू 2 ऑफ x माइनस 3 प्लस आइटा y. रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कलेक्ट कर दिया. तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट. इधर आ गया 2 ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट. देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो मेरे पास आएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. देन दिस रिजल्ट इज x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर. देन वी राइट इट एज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36. और यहाँ से आ गया मेरे पास x स्क्वायर कलेक्ट किया तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 32 इज इक्वल टू 0. यही प्रूव करना था कि मॉडुलस की कंडीशन लगा दी हमने. और मॉडुलस की कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसको फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि z इज गिवन एंड मॉडुलस इज गिवन. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13 डिस्कस करें हम. नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 13. व्हाट इज एग्जांपल नंबर 13? फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा. फाइंड रियल वैल्यू of theta such that real value of theta चाहिए. what is given such that 1 plus iota of cos theta upon 1 minus 2 iota cos theta is a real number. Is a real number. Find real value of theta such that 1 plus iota of cos theta upon 1 minus 2 iota cos theta is a real number. अगर ये रियल नंबर की कंडीशन है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन पे अप्लाई करेंगे. व्हाट इज गिवन नोट करें आप. लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आइटा कॉस थीटा. दिस विद द
गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब डिनोमिनेटर में यहाँ फ्री फ्रॉम डिनोमिनेटर में आइटा कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है, तो रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज डिनोमिनेटर, तो मेरे पास रिजल्ट आया 1 प्लस आइटा कॉस थीटा 1 माइनस 2 आइटा कॉस थीटा 1 प्लस 2 आइटा कॉस थीटा 1 प्लस 2 आइटा कॉस थीटा 1 प्लस आइटा कॉस थीटा, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस 2 आइटा कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 आइटा कॉस थीटा स्क्वायर ऑफ दिस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से सॉल्यूशन किया हमने, तो हमारे पास देखिए क्या रिजल्ट आया 1 प्लस 2 आइटा कॉस थीटा माइनस 2 आइटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हो गया 1 माइनस 4 आइटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर 4 आइटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कलेक्ट किया रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, आइटा स्क्वायर जहाँ भी आइटा स्क्वायर लिखा उसकी जगह -1 पुट कर दें, तो मेरे पास हो गया 1 प्लस 3 आइटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया मेरे पास, रियल पार्ट दिस प्लस इमेजिनरी पार्ट दिस अपॉन 1 प्लस 4 cos square theta. Denominator is free from iota. And for z to be real, what is given? This complex number z is a real number. Z is a real number. This implies that, therefore, मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट ये है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 आइटा cos थीटा अपॉन 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए रियल नंबर a प्लस 0 आइटा। एग्जैक्ट ये गिवन है, दिस इज प्योरली रियल, दिस z इज ए रियल नंबर। दिस इम्प्लाइज 3 cos थीटा अपॉन 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। देन व्हाट इज दिस? इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज दैट 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 0, एंड इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0, this implies theta is equal to 2n plus 1 pi by 2 for all n belongs to integer। ये सॉल्यूशन होगा आपके पास, थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ये सॉल्यूशन में पढ़ा है आपने सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में। अगर cos थीटा 0 होगा तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा, अगर sin थीटा 0 होगा तो n पाई होगा, इफ tan थीटा 0 होगा तो थीटा इज इक्वल टू n पाई होगा। तो वो सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। गिवन स्टेटमेंट है आपके पास कि दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए रियल नंबर, तो दिस इज ए रियल नंबर, दिस इज रियल नंबर। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये रियल पार्ट है, a प्लस आइटा बी स्टैंडर्ड फॉर्म में के साथ इक्वेट करेंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देन वी डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 14। We discuss example number 14. What is example number 14? If Z1, Z2, Z3 are complex numbers, if Z1, Z2, Z3 are three complex numbers, then such that modulus Z is 1. This is given. Such that modulus Z1 is equal to modulus Z2 is equal to modulus of Z3 is equal to
1 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 मॉडुलस इज इक्वल टू 1, राइट. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 plus Z2 plus Z3 modulus. Then find the value of Z1 plus Z2 plus Z3 modulus. सॉल्यूशन पे देखिए, जो जो गिवन है पहले नोट कर लें आप. व्हाट इज गिवन? 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है. 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन आपको. मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z3 is equal to 1. This is given, right? इसको मैंने लिख दिया मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1. इसको लिख दिया मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज राइट और नॉट? मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस Z3 1 है, तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा? 1 होगा आपके पास. इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से Z1 इंटू Z1 बार, Z स्क्वायर होगा. इसको लिख दिया Z2 इंटू Z2 बार. इसको लिख दिया Z3 इंटू Z3 बार. एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1. ये प्रॉपर्टी हमने नोट करवाई आपको. और यहाँ से हमने लिख दिया इसको रेसिप्रोकल की टर्म में. दिस एम्प्लाइज यहाँ से रिजल्ट बना Z1 बार इज इक्वल टू 1. Z1 बार इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हो गया Z1 1 अपॉन Z1 इज इक्वल टू Z1 बार. 1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू Z2 बार. 1 अपॉन Z3 इज इक्वल टू Z3 बार. बिकॉज Z1 बार इज इक्वल टू 1, दिस implies Z1 बार इज इक्वल टू 1 अपॉन Z1. ईच एंड एवरी पार्ट को इक्वेट कर लिया. और यहाँ से हो गया बिकॉज Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 बार. लिख सकते हैं. ये प्रॉपर्टी में हमने नोट करवा रखा. आल्सो 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 इज इक्वल टू 1. ये भी गिवन है आपको. 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 इज इक्वल टू 1. दिस इज ऑल्सो गिवन. ये भी गिवन है आपको. देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे हम. इसको लिख दिया हमने 1 अपॉन Z1 को मैं लिख सकता हूँ Z1 बार प्लस इसको लिख सकता हूँ Z2 बार. इसको लिखता हूँ Z3 बार. मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 बिकॉज Z1 बार प्लस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 बार. एंड बिकॉज मॉडुलस ऑफ Z बार इज इक्वल टू पूरे का मॉडुलस ऑफ Z. सेम आएगा आपके पास. दिस एम्प्लाइज, इसको लिख दिया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 मॉडुलस कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1. और इसको लिख दिया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 मॉडुलस इज इक्वल टू 1. और यही प्रूव करना था. ये रिजल्ट चूज करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा. यहाँ से ये गिवन है कि Z1 Z2 Z3 और 3 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z3 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z1 1 अपॉन Z1 1 अपॉन Z2 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 मॉडुलस इज इक्वल टू 1. ये भी गिवन है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. देन वी राइट हियर मॉडुलस Z1 स्क्वायर मॉडुलस Z2 स्क्वायर मॉडुलस Z3 स्क्वायर भी 1 ही होगा. मॉडुलस Z1 को क्या लिख सकते हैं? मॉडुलस Z1 स्क्वायर Z1 इंटू Z1 बार. कॉन्जुगेट उसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर ही आएगा. अब Z1 बार 1 के इक्वल है तो Z1 बार की वैल्यू निकाल लो. Z2 बार 1 के इक्वल है तो Z2 बार की वैल्यू निकाल लो. और Z3 बार 1 के इक्वल है तो Z3 बार की वैल्यू निकाल लो.
यहाँ से हमने सभी की वैल्यू निकाल ली। ये भी गिवन आपको 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 इक्वल टू 1। इसको मैंने लिख दिया 1/z1 को z1 बार, ये z2 बार प्लस z3 बार, ये भी प्रॉपर्टी है मेरे पास। और z1 प्लस z2 बार इंडिविजुअल का बार है, तो दोनों का सम करेंगे तो इसके बार के इक्वल होगा, कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। तो इसको लिख दिया z1 प्लस z2 प्लस z3 कॉन्जुगेट ऑफ दिस मॉडुलस इज इक्वल टू 1। और कॉन्जुगेट ऑफ z बार इज इक्वल टू गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस सेम होगा आपके पास। तो आपके पास आ गया मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2 प्लस मॉडुलस z3 इज इक्वल टू 1। इसी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे हमने। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपके पास कंप्लीट है 5.1। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम कल डिस्कस करेंगे सेकंड आर्टिकल 5.2 एक्सरसाइज के अंदर आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करके और इसके सॉल्यूशन फॉलो कर लें। कोई भी डाउट हो आप डिस्कस कर सकते हैं।